Good morning, class 6. I hope you all are good and please be safe and stay at home. Okay, and please keep maintain the social distancing. All right. So, what we are going to do today is the poem, and the poem name is Go Not to the Temple. So, this is a poem. Today, we'll do this poem, Go Not to the Temple, and this poem was written by Rabindranath Tagore. What? Rabindranath Tagore, a very well known writer, author. All right. So, for that, you have to open page number 49 in your English test textbook. So, this is your book, Roots and Wings, main course book class 6, and Fruits and Wings. Alright, so this is your book. So we'll continue the poem. Before that, I just want to tell you some facts about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is well known for his poems, novels, essays, dramas, plays. All right, so he's very famous for that things and his travelogues, stories. All right, so uh, even he was exceptionally a good painter, also we can say, and as a poet, he won the Nobel Prize for his uh, for his work in literature in 1913. All right. So we'll continue the poem. For that, I have told you you have to open page number. Go not to the temple. This poem is was also written by Rabindranath Tagore. So we will continue the poem. All right. So let's go. So this is your poem, Go Not to the Temple poem, and read and enjoy, and written by Rabindranath Tagore, and this is a poem. So we'll do. First of all, I'm going to read this poem, and after that, I will explain you the meaning. All right. So what is there in the poem? All right. So first of all, I'm going to read, and you also have to read with me. So go not to the temple to put flowers. Go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First, fill your own house with the fragrance of love. Go not to the temple to light candles before the altar of God. First, remove the darkness of sin, pride, and ego from your heart. Go not to the temple to bow down your head in prayer. First, learn to bow in humility before your fellow men. Go not to the temple to pray on bended knees. First, bend down to lift someone who is downtrodden. Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins. First, forgive from your heart those who have hurt you. So, Rabindranath Tagore. So, this is a beautiful poem. It was written by Rabindranath Tagore. So, we'll read this poem again, and I will explain you the meaning of this poem. All these stanzas. So, how many stanzas are there in this poem? How many stanzas? So, there are 5 stanzas in this poem. Alright. So, क्या है इस poem में? What the poet want to say is, go not to the temple to put flowers. कि हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और बहुत सारी अलग अलग, हम इंडिया में तो काफ़ी रिलीजन्स हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जाते हैं. तो जो हिंदूज होते हैं वो मोस्टली टेम्पल जाते हैं. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स, कि तुम मंदिर मत जाओ क्या चढ़ाने के लिए,
फूल चढ़ाने के लिए। किनके पैरों में, किनके चरणों में? गॉड के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए तुम मत जाओ। क्यों मत जाओ? वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की और भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने की। फर्स्ट फिल योर ओन हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। वो कहना चाह रहे हैं, द पोएट वांट टू से इज कि सबसे पहले तो तुम अपना घर पवित्र करो, अपने घर को प्यार की खुशबू से महकाओ। क्या करो? जो प्यार की खुशबू है उससे अपने घर को पहले महकाओ, तब जाकर तुम भगवान के चरणों में फूल चढ़ाना। कोई जरूरत नहीं है भगवान के चरणों में जाकर फूल चढ़ाने की। सबसे पहले तुम ये काम करो, वहां जाने की बजाय तुम अपने घर में अपने खुद के ओन हाउस को फ्रेग्रेंस ऑफ लव मतलब प्यार की खुशबू से महकाओ। ठीक है, उसे भरो पहले। तो what is in the second stanza is, go not to the temple to light candles। कि कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, मंदिर में जाकर कैंडल्स जलाने की भगवान के सामने, ऑल्टार ऑफ गॉड। ठीक है, एक जगह होती है जहाँ पे हम भगवान के सामने मंदिर, एक स्टैंड टाइप होता है, तो उस पे हम क्या करते हैं, वो कैंडल्स मीन्स बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, यहाँ पे दिए कह सकते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं, धूप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भगवान के सामने जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉट टू द टेम्पल, तो इसके लिए मत जाओ भगवान के पास, भगवान के चरणों में, भगवान के सामने कैंडल्स जलाने के लिए मत जाओ। फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन। तो सबसे पहले क्या करो, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे जाकर कैंडल जलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भगवान के सामने। सबसे पहले तुम जो तुम्हारे अंदर का अंधकार है, जो तुम्हारे अंदर डार्कनेस है, ठीक है, जो तुमने पापों का जो अंधेरा है, जो तुमने पाप किए हैं, सबसे पहले उनको हटाने की कोशिश करो। फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन। ठीक है, जो तुमने पाप किए हैं उनको, उनका अंधेरा हटाने की कोशिश करो। प्राइड, जो तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर जो घमंड है, ईगो है, अहंकार है, उसे अपने दिल से हटाने की कोशिश करो। ठीक है, उससे लाइट अप करो, उससे मतलब कैंडल्स जलाने की बजाय आप अपने अंदर जो अंधेरा है उसको जगाने की कोशिश करो, जो आपके दिल के अंदर है। जो कौन सा अंधेरा है? जो प्राइड है आपके अंदर, जो ईगो है आपके अंदर, जो पाप किए हैं आपने, तो उस अंधेरे को हटाने की कोशिश करो अपने दिल से। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा इज, गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर। कि आप मंदिर अपना सर झुकाने के लिए मत जाओ। ठीक है, प्रार्थना आप जब करते हो, प्रेयर्स जब आप करते हो, तो क्या करते हो, आप अपना सर झुका लेते हो भगवान के सामने, है ना। तो वो मत करो जाकर वहाँ पे मेरे सामने, मंदिर आप जा रहे हो सर झुकाने के लिए प्रेयर्स में, तो वो मत करो। उसकी बजाय क्या करो, फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी। कि उससे पहले आप हम्बल होना सीखो। ठीक है, हम्बल मीन्स किसी से मतलब अच्छा नेचर जो होता है, हम्बल बिहेवियर। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी, कि आप उसके लिए झुकना सीखो जो तुम्हारा फेलो मैन है, मतलब जो भी व्यक्ति है, कोई आदमी है, इंसान है, उसके सामने, गरीब है, लाचार है, उसके सामने झुकना सीखो। ठीक है, हम्बलनेस के साथ। तो कोई जरूरत नहीं है मंदिर में आके सर झुकाने की, प्रार्थना करने की। ठीक है, सबसे पहले तुम ये सीखो कि किस तरीके से हमें हम्बलनेस के साथ अपना सर झुकाना है, जो भी हमारे दोस्त हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ, जो हमारे कलीग्स हैं, ठीक है, हमारे साथ के जो हैं। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज। कि कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की और जाकर वहाँ पे घुटनों के बल बैठने की। ठीक है, हम जाते हैं ना मंदिर में, तो मंदिर में क्या करते हैं, ये सब रिचुअल्स होते हैं हमारे। सबसे पहले हम अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं मंदिर में चढ़ाने का, जो भी सामान है, जैसे कि दिया, धूप बत्ती, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, है ना।
फ्लावर्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम मंदिर में जाके यही रिचुअल्स करते हैं, घंटी बजाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, बो करते हैं, सर झुकाते हैं और प्रे करते हैं बेंडेड नीज पे। बेंडेड नीज मीन्स हम बैठ जाते हैं अपने घुटनों के बल और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी गरीब है, ठीक है, जो बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं ना कि जिसके पास कुछ नहीं है, तो जो डाउन ट्रोडन है, जो जिसकी मजबूरी है कुछ, तो उस इंसान को उठाने में पहले उसकी मदद करो, ठीक है। जो खुद नहीं कुछ कर पा रहा है उसकी मदद करो, उसे ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करो, उसके सामने झुको उसको उठाने के लिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सामने प्रार्थना करके अपने घुटनों के बल बैठ के मेरे सामने प्रार्थना करना और मंदिर आना। उसकी जगह तुम क्या करो, उसकी बजाय तुम किसी गरीब को जो बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, ठीक है, तो उनको उठाने की कोशिश करो। जो लाचार है, एक्चुअली लाचार, ठीक है, जो लाचार है, मजबूर है, लाचार है, गरीब है, तो उसको उसके लिए झुको, उसको उठाने के लिए झुको आप, ठीक है। जो डाउन ट्रोडन है उसको उठाने के लिए आप झुको, ना कि मंदिर आकर घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने प्रार्थना करो, ठीक है। So what is there in the next stanza is, go not to the temple to ask for forgiveness for your sins। कि आप मंदिर मत जाओ। अगर आप मंदिर आए हो और मुझसे फॉरगिवनेस के लिए मांग रहे हो, फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा याचना जो होती है, मतलब भगवान जो भी मैंने पाप किए हैं उन्हें माफ कर देना, भगवान से आप कहते हो ना कुछ, तो आप उसके लिए मत आओ मेरे पास। क्या कह रहे हैं, गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो उसके लिए आप जो भी आपने पाप किए हैं उसकी क्षमा मांगने आप आए हो, उसके लिए फॉरगिवनेस मांगने आप आए हो, तो प्लीज उसके लिए आप मंदिर मत आओ। तो सबसे पहले आप क्या करो, उसकी जगह आप क्या करो, फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट। तो सबसे पहले आप माफ करो अपने दिल से। किसको माफ करो, दोज हु हैव हर्ट यू, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है उनको, ठीक है, तो उनको आप माफ करो। फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से उन्हें माफ करो जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, आपका दिल दुखाया है, आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, तो उनको आप दिल से माफ करो। और फिर उसकी बजाय, किसकी बजाय, गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, कि आप उसकी क्षमा मांगने मत आओ मेरे पास पापों की जो तुमने किए हैं, आप उनको पहले अपने दिल से माफ करो जो जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। So this poem is written by Rabindranath Tagore, as I have told you earlier. So once again I'll read the poem and explain you the meaning of that poem is, go not to the temple to put flowers upon the feet of God, first fill your own house with the fragrance of love। So in the first stanza what is there कि मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर को प्यार की खुशबू से महकाओ। एंड सेकेंड पैरा में है कि मंदिर में जाके आपको कैंडल्स जलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है भगवान के सामने। सबसे पहले आपके अंदर जो पाप है, आपके अंदर जो प्राइड, अहंकार और ईगो है जो आपके दिल में, उसे हटाने की कोशिश करो, उसको, उस अंधेरे को हटाने की कोशिश करो जो इनके रूप में है, डार्कनेस ऑफ सिन, प्राइड एंड ईगो फ्रॉम योर हार्ट। तो उसको हटाने की अपने दिल से कोशिश करो, ठीक है, उस अंधेरे को हटाने की कोशिश करो। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आके दिए जलाने की, मोमबत्ती और जो भी चीज़ें हैं वो सब जलाने की, ठीक है, भगवान के सामने। सबसे पहले तुम अपने मन के अंदर तुम्हारे जो दिल का अंधेरा है, जो तुमने पाप किए हैं, जो तुम्हारा अहंकार है, पहले उस अंधेरे को हटाने की कोशिश करो, तब आना मेरे पास, ठीक है।
So go not to the temple to bow down your head in prayer, और कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाके भगवान के सामने अपना सर झुकाने की। सबसे पहले तुम इंसानियत के सामने अपना सर झुकाओ, इंसानों के सामने अपना सर झुकाओ, ठीक है, हम्बलनेस के साथ, ठीक है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट पैरा व्हाट इज देयर इन नेक्स्ट स्टेंजा इज कि कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की और घुटनों के बल मेरे सामने प्रेयर करने की। ऑलराइट, सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन, जो भी लाचार लोग हैं उनके सामने झुको, उनको उठाने के लिए, ठीक है। तो उनको उठाने के लिए आप झुको, ना कि मंदिर में आकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर आप प्रार्थना करते हो। उसकी बजाय आप क्या करो, कोई जो लाचार है, गरीब लाचार है, उसको उसके सामने झुक के उसे उठाने की कोशिश करो। ऑलराइट, तो गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, और ना ही तुम क्या करो, भगवान के सामने जाकर उनसे क्षमा याचना मांगो जो भी तुमने पाप किए हैं। मतलब होता है ना, हम पाप कर लेते हैं और फिर जाके भगवान प्लीज माफ कर देना, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मतलब आप काम करके पाप करके फिर बोल रहे हो कि भगवान उसे माफ कर दो। तो ऐसा मत करो, भगवान के सामने जाकर ऐसा बोलने की बजाय आप क्या करो, फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव हर्ट यू, कि सबसे पहले अपने दिल से उन्हें माफ करो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है, ठीक है, दिल दुखाया है तुम्हारा, ठीक है। सो दिस इज इन योर पोएम and the poem is written by Rabindranath Tagore. Here, as you can see in the picture, there. So this picture belongs to the. Here is the temple, and this picture belongs to the which paragraph? Which paragraph is this stanza? Go not to the temple to pray on bended knees. कि आप मंदिर जाओ बेंडेड नीज पे मत, घुटनों के बल मत झुकिए। सबसे पहले जो डाउन ट्रोडन है, जो गरीब है, लाचार है, लाचार एक्चुअली कहेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। तो उसको उठाने के लिए आप झुको, ठीक है, हु इज डाउन ट्रोडन। सो दिस पिक्चर टेल्स अस related to this stanza. All right, so move on to the next page, is page number 50. Here there are some word meanings from the poem. Is fragrance. Fragrance मैंने आपको बताया खुशबू होती है, a pleasant or sweet smell. Altar, a table flat topped block used for religious rituals. कि एक टेबल फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक होता है जो रिलीजियस रिचुअल्स जो भी होते हैं तो उसके लिए यूज होता है। ये रिचुअल्स है, ये भी नहीं है, ये यू है, रिचुअल्स नॉट रिचुअल्स। ऑलराइट, सो ह्यूमिलिटी क्या होता है, जिसमें हम हम्बलनेस शो करते हैं, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल, जिसमें हम जेनरॉसिटी शो करते हैं कि हम कितने जेनरस हैं, हम कितने अच्छे हैं, ठीक है, इंसानियत दिखाते हैं। नेक्स्ट वन इज फेलोमैन। फेलोमैन मीन्स जो हमारे साथ के साथी होते हैं, मतलब हमारे जैसे ही, तो उनके लिए हमें एसोसिएट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मीन्स ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मीन्स जो लाचार हैं, गरीब लाचार हैं, ठीक है, जो सताए हुए लोग हैं, परेशान किए हुए लोग हैं, तो दैट विल कम इन डाउन ट्रोडन। सो दिस इज योर एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आज हम सिर्फ ओरली क्वेश्चन आंसर को करेंगे, मैं आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। ऑलराइट, so what is there in first, so what you have to do is, first of all, before that I just want to tell you is कि what you have to do, you have to write the poem, you have to write this poem, go not to the temple, and सबसे ऊपर आप लिखोगे poem, and then you will write the heading, the heading of the poem, go not to the temple, and then you will continue the poem. So how many lines you have to write? Only 8 lines. Up to here you have to write in your notebook. All right, now move on to the rhyming words related to this chapter. Is there any rhyming word in this chapter? Have you seen rhyming words in this chapter?
So there are no rhyming words in this chapter. So we'll just write the poem and then after we'll write the name of the poet, Rabindranath Tagore. Alright. So एक बार orally ये questions को complete कर लेंगे. What does the poet ask people to do before they go to the temple and offer their flowers of devotion at the feet of God? कि जो poet है वो क्या कह रहा है लोगों को जब वो मंदिर जा रहे हैं and अपने flowers devotion में मतलब भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं, अपना devotion दिखा रहे हैं. ठीक है, तो क्या पोइट हमको कहना चाहता है? पोइट हमें बताना चाह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मंदिर में जाकर अपने फ्लावर्स ऑफ डिवोशन एट द फीट ऑफ गॉड ऑफर करने की, क्योंकि सबसे पहले तुम अपने प्यार से अपने घर को महकाओ, मंदिर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. So next question is, what kind of light does the poet ask the devotees to light before lighting the candles at the altar of God? तो वो कैसी लाइट को भगवान कौन सी लाइट के बारे में पोइट जो है वो कहना चाह रहा है डिवोटीज को कि आप किस तरीके की लाइट जलाओ, बजाय जो आप कैंडल्स जलाते हो भगवान के चरणों में, उसकी बजाय आप कौन सी लाइट जलाओ, कौन सी लाइट जलाने की कह रहा है? वो कह रहा है कि ये जो सिन आपने किए हैं, डार्कनेस, उस अंधेरे को हटाओ और उजाले में आ जाओ. तो वो वाली लाइट जलाने की कोशिश करो जो आपके अंदर प्राइड है, ईगो है और सिंस जो आपने पाप किए हैं उस डार्कनेस को हटा के, ठीक है, तो उसकी लाइट जलाओ. नेक्स्ट वन इज, व्हाई डज द पोएट आस्क द टेंपल गोयर्स नॉट टू बो देयर हेड्स इन प्रेयर? कि क्यों पोएट कहता है टेंपल गोयर्स को कि वो अपने प्रेयर में सर ना झुकाएं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सर उनके सामने झुकाइए, जो भी डाउन ट्रोडन लोग हैं, मतलब कि जो भी गरीब लाचार लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनके सामने उनको लिफ्ट करने के लिए अपना सर झुकाइए. ओके. So next one is, what kind of recommendation does the poet make to the temple goers before praying on knees? कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी है पोइट ने टेम्पल गोयर्स के सामने जो जब भी वो नीज पे बैठ के भगवान के सामने कर रहे हैं. तो ठीक है, तो क्या कहा है? सॉरी, आई हैव टोल्ड यू दैट आंसर कि जो इसमें बो है, बो में हम इंसानियत के सामने झुकें, जो भी हमारे फेलो मैन हैं, जो भी हमारे साथ के लोग हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके सामने हम हम्बलनेस शो करें. और इसमें है कि हम जो गरीब लाचार हैं उनको उठाने की कोशिश करें, उसके लिए हमें झुकना चाहिए. ऑलराइट. So next question is, what message does the poet give through this poem? कि कौन सा मैसेज है, संदेश है जो हमें पोइट देना चाहता है इस पोएम के थ्रू? तो वो कौन सा मैसेज है कि हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, हमें गंदे काम नहीं करने चाहिए, ठीक है, एक अच्छा इंसान, ठीक है, अच्छा ह्यूमन बनना चाहिए, ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो दैट मैसेज we get from this poem. So I have given you work, so you have to do that work, and tomorrow we'll continue the class. So thank you for today, and if you have any doubt, if you have any queries related to the poem, you can ask me, and tomorrow I'll give you the question and answers related to this poem. All right, so thank you for today. Bye bye, take care.